आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड में हम पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल एंड डिमांड क्या है, डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या है, रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, नॉर्मल गुड्स एंड गिवन गुड्स और सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। मूविंग ऑन टू द टॉपिक, डिमांड के लिए हमें पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिज़ायर। Desire is to purchase a goods for which he has no money. A consumer wants a consumer desire for a product for which he has no money. Want means a person desire for a product but he has a money but not willing to spend the money. And demand is the quantity demanded of which the consumer is ready to purchase at a given point of time when all other things remain constant. It means अगर हम इसके डिफरेंस को समझें कि मैं डिज़ायर कर रही हूँ कि मुझे एक फॉर्च्यूनर मिल जाए, दैट इज़ ओनली डिज़ायर, आई हैव नो मनी। नेक्स्ट इज़ वांट, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, आई वांट टू परचेज अ फॉर्च्यूनर बट आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड नाउ, दैट इज़ नोन एज वांट। एंड डिमांड इज़ व्हेन आई एक्चुअली goes to a market to purchase the Fortuner, that is the demand. When I desire for something, when I have money to purchase that product and I am willing to spend on my desire, and I know the prices of the product and I know the timing at which I am going to purchase that product. When all these factors accumulated, then a demand created. It means there is a 5 deciding factors of a demand, that is desire to purchase, money for desire, willing to spend money on that desire, time and demand relation, time and money relation, price relation, that is known as demand deciding factors. Moving on to the next, डिमांड फंक्शन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, दैट इज़ पर्सनल और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन and market demand function. When we talk about one individual, one firm, one unit, one industry, then it is personal demand function. When I talk about the economy, when all the units, all the firms, all the individual firms are accumulated, then it is market demand function. Personal demand function or individual demand function can be represented by dx is equal to function of px pr yte. And what is this px pr yte? px is the prices of goods. किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसके प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है. when prices increases, the demand for that product decreases because the consumer income is limited and consumer will buy only that quantity of a product which he can afford. नेक्स्ट इज़ पी आर. पी आर इज़ द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. कई बार हमारी डिमांड जो है वो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स मीन्स कि जो गुड्स, जिस गुड की मैं डिमांड कर रही हूँ उसका सब्सिट्यूट गुड्स मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, वो गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड है क्या, और या फिर वो गुड एक अनरिलेटेड गुड्स है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो उसकी डिमांड इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी क्या पर्सन टी को छोड़कर कॉफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी पीना इंक्रीज़ कर सकते हैं. दैट इज़ द सब्सिट्यूशन इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये है कि अगर फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो क्या लोग कार की डिमांड कम करने लग जाएंगे, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एंड अनरिलेटेड गुड्स मीन्स सॉल्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ होने पर कार के प्राइस डिमांड डिक्रीज़ होती है या नहीं होती, दैट इज़ अनरिलेटेड गुड्स. तो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर इनकम. कंज्यूमर इनकम का डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. एज यू ऑल नो, income is limited which the consumer is ready to spend on the quantity demanded. When the income of the consumer increases, there is more demand for the normal goods and less demand for the given or inferior goods, because the consumer income allows the consumer to buy a standardized product to meet its demand. Then its demand shift from given goods to normal goods. Next is interest and fashion. When there is a fashion, when there is a interest of a consumer to buy something, then the prices of that goods is irrelevant for that person.
and demand increases with increase in fashion and so on. Expectation means future expectation. If a consumer thinks that the prices of goods increase in future, then in present the consumer will demand more of that product. Next, moving on to the next topic, that is market demand function. Market demand function is the summation of individual demand functions. So the factors we are studying in personal demand function also affect the market demand function. Apart from that, there are some new related factors which affect the market demand function, and that is NGS and YD. What is this NGS and YD? मार्केट डिमांड फंक्शन जो है वो पर्सनल डिमांड फंक्शन वाले फैक्टर्स को तो कंसिडर करेगा ही कि प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या है, प्राइसेस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स क्या है, कंज्यूमर इनकम का क्या लेवल है, इंटरेस्ट एंड फैशन क्या चल रहा है, एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है। उसके अलावा वो ये देखेगा कि पॉपुलेशन क्या है, कि पॉपुलेशन में हम दो चीज़ें देखते हैं, साइज़ एंड नेचर, कि पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। नेक्स्ट, नेचर की पॉपुलेशन में डिस्पैरिटी कितनी है, कि अगर पॉपुलेशन मैन ओरिएंटेड है तो मेंस रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर वुमेन ओरिएंटेड है तो वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, एंड किड्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो टॉयज़ एंड बेबी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट, जो डिपेंड करता है मार्केट डिमांड फंक्शन, वो है, उसका फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग इंक्रीज़ करना चाहता, अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ करना चाहता है तो उसके प्राइसेस को कम करने के लिए वो उसके प्रोड्यूसर को सब्सिडी प्रोवाइड कर देगा, सो दैट द मार्केट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट विल डिक्रीज़, सो इन रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है मार्केट डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट इज़ वेदर एंड सीजन, कि सीज़न क्या चल रहा है। अगर विंटर सीज़न है तो वार्म प्रोडक्ट्स या फिर टी एंड कॉफ़ी, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर समर सीज़न चल रहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स, कॉटन क्लोथ्स, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। तो मार्केट डिमांड फंक्शन जो है वो वेदर एंड सीज़न के ऊपर भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है। अगर इनइक्वालिटी है देन डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स आर मोर, एंड इफ देयर इज इक्वल और somehow equal distribution of income, then demand for normal goods are more. Next is the law of demand. Law of demand means, सबसे पहले हम इसके करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स व्हेन all things remain constant, the relation between the prices of the goods and the quantity demanded of goods are inversely related to each other. It means when prices increase, demand decreases, and prices decrease, then demand increases. Demand function में हमने 5 factors पढ़े थे, that is PX, PR, YTE, that is the prices of goods, prices of related goods, income of the consumer, taste and fashion, and expectations. When we talk about the law of demand talk about the prices of the goods and the demand of the product. When the prices increases, the demand decreases, and so on. इसी डिमांड फंक्शन से इसकी एजम्पशंस निकलती हैं कि डिमांड फंक्शन जो है वो प्राइसेस ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो PRYTE को हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि प्राइसेस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट रिमेंस द कांस्टेंट, कंज्यूमर इनकम रिमेंस द सेम, फैशन एंड टेस्ट रिमेंस द सेम, एंड एक्सपेक्टेशन रिमेंस द सेम। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम शेड्यूल पढ़ेंगे। डिमांड शेड्यूल जो है वो हम दो पढ़ेंगे, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम एक कंज्यूमर को ले रहे हैं कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं 1 2 3 4, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ करने लगता है, दैट इज़ 4 3 2 1, बिकॉज उसकी रियल इनकम कम हो जाएगी, उसका बजट अलाउ नहीं करेगा कि वो ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा क्वान्टिटी परचेज़ कर पाए। नेक्स्ट इज़ द मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन इज़ द सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये 2 या 3 यूनिट्स को एडअप करके हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन निकल आता है। तो शेड्यूल में शो किया गया है कि हमारे पास दो कंज्यूमर हैं, 1 एंड 2। कंज्यूमर 1 ने क्या डिमांड किया, डैट इज़ QX1, एंड कंज्यूमर 2 ने क्या डिमांड किया, डैट इज़ QX2। प्राइसेस के इंक्रीज़ होने पर 1 2 3 4, क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर 1 इज़ 4 3 2 1, एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर 2 इज़ 5 4 3 2। तो जो मार्केट डिमांड है वो सबमिशन ऑफ दीज टू आ जाएगा, डैट इज़ 4 + 5 9,
3 + 4 7, 2 + 3 5 and 1 + 2 3. तो मार्केट डिमांड फंक्शन बिकम्स दी 9753. इसे अगर हम डायग्राम के रूप में शो करें, then individual demand function is downward sloping demand curve shown in the figure where on y-axis there is prices and on x-axis there is a quantity. When the prices of goods is 4, then the quantity demanded is 1. When prices decreases, quantity demanded increases, and when prices become 1, the quantity demanded is 4. Similarly, in market demand function, figure 1, 2 and 3, figure 1 में consumer 1 का demand curve है, which is also a downward sloping curve, which shows that when prices decreases, quantity demanded increases. In figure 2, demand curve of a consumer 2, it also shows that when consumer income when the prices of the goods is 4 units, then the quantity is 2 units, and when prices decreases, the quantity demanded increases. In the summation of these two, in figure 3, the market demand function is also a downward sloping demand curve, which shows that when prices increases, quantity demanded decreases and vice versa. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीज़न फॉर डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व. नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व मीन्स स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच मीन्स व्हेन प्राइसेस इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस. इसके मेनली 5 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जो है वो कभी भी किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड तभी करता है जब उसकी यूटिलिटी होती है. यूटिलिटी तभी होती है जब वो डिसाइड करता है कि ये उसके लिए बेटर है. when prices increases, utility decreases because the consumer is not willing to spend more for a less quantity, and demand decreases. Next is the income effect. When prices increases, real income of the consumer decreases. As a result, the demand decreases because the consumer has because the consumer buying capacity decreases, due to which the demand decreases. थर्ड हमारा जो फैक्टर है या रीज़न है, दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस, द कंज्यूमर इज लुकिंग फॉर द सब्स्टिट्यूट्स and the demand for substitute goods increases, but the demand for particular good decreases. Next is alternative uses. All goods have alternative uses. When the prices increases, the consumer will only spend for that essential use which he thinks is urgent, due to which the demand of the product decreases. For example, जो चना होता है वो एक ह्यूमन बीइंग भी यूज़ करता है एंड हॉर्स भी यूज़ करता है. जब प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो एक कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करता है कि विच इज़ द एसेंशियल यूज़, और उसके बेसिस पे जहाँ वो पहले 10 kg चना खरीद रहा था, अब वो 5 kg परचेज़ करने लग जाएगा फॉर दी अर्जेंट यूजेस ओनली. दैट इज़ नोन एज इफेक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस. Next is change in consumer group. When prices decreases, the demand by new consumer increases, due to which the demand increases, and when prices increases, the consumer will shift from that good to other good, and consumer base will shift from that product. So these are the reasons for downward sloping or negative sloping demand curve. Next, our topic is exceptions to the law of demand. Exceptions to the law of demand means where law of demand doesn't apply. It means when prices increases, demand also increases and vice versa. The reasons for these are luxury and prestigious goods. Luxury and prestigious goods के केस में law of demand applicable नहीं होता है, because people अपनी शो ऑफ एंड सोशल स्टेटस शो करने के लिए मोर प्राइसेस भी पे करने के लिए रेडी होते हैं फॉर दी मोर डिमांड. इट्स ऑल ड्यू टू सोशल शो ऑफ. नेक्स्ट इज शेयर इग्नोरेंस. कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि प्राइसेस के इंक्रीज होने पर डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है. रीज़न मीन कई लोगों को ये लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स दैट कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज चेंज इन फैशन. चेंज इन फैशन के केस में भी जब फैशन में कोई चीज़ होती है तो प्राइसेस के इंक्रीज़ होने पर भी उसकी डिमांड इंक्रीज़ ही रहती है. नेक्स्ट इज़ गिफ्ट इन गुड्स. गिफ्ट इन गुड्स के केस में
प्राइसेस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, विच मीन्स कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तब हम गिफिन गुड्स को छोड़कर नॉर्मल गुड्स को यूज़ करने लगते हैं। चाहे गिफिन गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हों तब भी हम गिफिन गुड्स को नहीं परचेज़ करते हैं। इन दैट केस ऑल्सो द लॉ ऑफ डिमांड डजेंट अप्लाई। इमरजेंसी सिचुएशंस में लाइक इन केस ऑफ वॉर्स, लॉ ऑफ डिमांड doesn't apply because person wants to accumulate the things so that in future if there is a scarcity then they have buffer stock to meet its demand. नेक्स्ट इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और स्पेकुलेशन। अगर किसी कंज्यूमर को या कंज्यूमर ग्रुप को या सोसाइटी को ये लगने लगता है कि इन फ्यूचर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इंक्रीज हो सकती है, तो इन करंट सिनेरियो इवन इफ प्राइसेस आर इंक्रीज द डिमांड विल इंक्रीज एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल गुड्स एंड गिफिन गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि इनकम के प्राइसेस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो, और गिफिन गुड्स वो होते हैं जिसमें प्राइसेस के इंक्रीज होने पे गिफिन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर द कंज्यूमर अवेलेबल टू शिफ्ट इट्स डिमांड। नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, गिफिन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, गिफिन गुड्स में पॉजिटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है कि इनकम के इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। गिफिन गुड्स के केस में नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है बिकॉज इनकम के इंक्रीज होने पे कंज्यूमर गिफिन गुड्स को परचेज करना बंद कर देंगे बिकॉज इट हैज़ मोर बाइंग कैपेसिटी, सो he will shift its demand from given goods to normal goods, तो उसका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में हम सारी कवर कर चुके हैं कि नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं। नॉर्मल गुड्स वेयर इनकम एंड प्राइस इफेक्ट बोथ आर पॉजिटिव, कि प्राइसेस के इंक्रीज होने पर या इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड, प्राइसेस के इंक्रीज होने पर डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी एंड सो ऑन। इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज़ पॉजिटिव। गिफिन गुड्स के केस में इनकम एंड प्राइस इफेक्ट बोथ आर नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल, एंड सब्सिट्यूट गुड्स आर दोज